ठीक है, yesterday we started with unit number 4, correct? उसमें से we completed obligations of the parties, right? And we completed the next topic as well, that is these sections 40, 41 and 42, right? इसमें हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट को कौन परफॉर्म कर सकता है. So we studied there are 5 different people, right? Promisor himself, agent, legal representative, third person or joint promisors in respective cases. ठीक है, come to this point now. Distinction between succession and assignment. Distinction between succession and assignment. Okay, so now the word succession, I'm sure you must have heard about this word succession. Now succession हमने word कहाँ पढ़ा था? Whenever we speak of a joint Hindu undivided family business, ठीक है, हमने ये वर्ड वहां पर सक्सेशन पढ़ा है. एंड एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सपोजिटली अगर आपको याद रहेगा, यहाँ पर एक कर्ता होता था, करेक्ट? कर्ता वाज द हेड ऑफ द फैमिली एंड अदर मेंबर्स कौन थे? अदर मेंबर्स को क्या बुलाते थे हम लोग? को-पार्सिनर्स, करेक्ट? ये आपको इसमें था, ओसी में था, को-पार्सिनर्स एंड कर्ता. सो इन शॉर्ट व्हाट वाज इट? That supposedly Karta is the father. ठीक है? Now if the father dies, he will inherit, the son will inherit the property of his father. ठीक है? Supposedly if the father dies, the son will inherit all the properties of the father. तो father के नाम पर जो भी सारे properties होती हैं वो son के नाम पर चले जाती हैं. ठीक है? Now one common thing जो हम succession में काफी बार भूल जाते हैं, that is फादर से सन को सिर्फ एसेट्स नहीं जाते हैं, फादर की जो लाइबिलिटीज हैं वो भी सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाती हैं सन को, सन के नाम पर. ठीक है? तो आई विल से कि अगर फॉर एग्जांपल फादर हैड प्रॉपर्टीज ऑफ ₹5 लाख, ठीक है, और फादर के नाम पर कुछ लाइबिलिटीज थे ऑफ से 2,50,000 अराउंड, तो ये दोनों भी इनहेरिट होंगी क्या? द आंसर इज yes, both these things. So I will say asset plus the liabilities of the father will get inherited by the son. ठीक है? हमको कई बार ये लगता है कि inherit, जब हम वर्ड inherit समझते हैं, we only understand inherit का मतलब सिर्फ assets ट्रांसफर होते हैं. द आंसर इज नो. assets के साथ साथ जो फादर की लाइबिलिटीज होती हैं वो भी इनहेरिट हो जाती हैं उसके सन को. ठीक है? So this is nothing but the meaning of the word succession, है ना? When the son inherits the property of the father, वो क्या रहा है? That property, that assets and those liabilities are getting, transferred to his son, and this process is called as succession. ठीक है? Let us read now. Okay, the distinction between two aspects, two concepts, that is succession and assignment, may be noted carefully. ठीक है? Okay, when the benefits of contract are succeeded, यहाँ पर benefits का मतलब क्या है? लिख लो यहाँ पर. benefits means they are trying to say the word assets. So benefits के बाजू में लिख लो assets. ठीक है? I'll read the sentence again. When the benefits of the contract are succeeded by the process of law, then both लिखा है, then both burden and benefits. तो burden मतलब क्या? liabilities, और benefits मतलब क्या? assets. तो दोनों चीजें फादर से सन तक ट्रांसफर होती हैं. both लिखा है. ठीक है? both burden and benefits attaching to the contract may devolve on the legal heir. ठीक है? सपोज अब यहाँ पर आपका एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहा है. सपोज अ सन सक्सीड्स टू द एस्टेट ऑफ हिज फादर आफ्टर हिज डेथ, he will be liable to pay the debts and liabilities of the father owed during his lifetime. मतलब क्या? जो पहले फादर की सपोजिटली यहाँ पर लाइबिलिटीज कितनी थी? 2,50,000 लाइबिलिटीज थी. सपोजिटली फादर ने एक लोन लिया था बैंक से 2,50,000 एंड द नेक्स्ट डे इमीडिएटली ही डाइड, करेक्ट? तो अब ये लोन को रीपे कौन करेगा? His son will repay. Why? Because in succession we have studied that not only the assets of the father but also the liabilities of the father gets transferred to the son. तो अब ये जो बैंक लोन है
ये लाइबिलिटी जो है दिस इज अ बैंक लोन। अब ये बैंक लोन को कौन रीपे करेगा? हिज सन विल रीपे। ठीक है, करेक्ट। ओके, नाउ हियर कम्स अ क्वेश्चन फॉर ऑल। आप सोच के बताओ कि आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ। इट्स अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फर्स्ट यू आंसर मी, फिर आप अपने नोटबुक में लिखना। ठीक है, तो सपोजिटली फादर है, ही डाइड, करेक्ट। तो अब उसकी जो भी सारी एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज है किसके पास जाएंगी? उसके सन के पास जाएंगी, करेक्ट। नाउ एसेट्स हैं, आई टेक द सेम एग्जांपल, 5 लाख रुपीज, दिस इज केस 1। और यहाँ पर मैं केस 2 लिखूंगी। ठीक है, यहाँ पर भी केस 2 में भी एसेट्स 5 लाख हैं। नाउ लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज के नाम पर क्या है? आई राइट योर बैंक लोन। ठीक है, अब बैंक लोन यहाँ पर है 2,50,000। ओके, सो इन द केस 1 एसेट्स कितनी ट्रांसफर हुई है सन को? 5 लाख रुपीज की। और लोन कितना ट्रांसफर हुआ है? 2,50,000 का। ठीक है, तो अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, हाउ मच विल द सन रीपे टू द बैंक? कितना रीपे करेगा वो? उसको एसेट्स कितनी की आई है? 5 लाख की आई है। और लोन कितने का आया है? लोन ट्रांसफर हुआ है 2,50,000 का। सो हाउ मच इज द सन लाइबल टू पे टू द बैंक? 2,50,000, करेक्ट। तो जितना भी लोन है वो फुल रीपे करेगा। सो आई राइट हियर फुल रीपेमेंट, है ना, क्योंकि वो आसानी से पे कर सकता है। उसको 5 लाख की एसेट्स आई हैं एंड 2,50,000 का लोन आया। सो इजिली ही कैन, you know, out of this 5 lakh assets, maybe it's a property form, it's a cash balance है, या whatever it is, bills receivable, whatever is the form of the asset, he can easily sell the assets off and he can पे दिस लाइबिलिटी जो उन्होंने, उसके फादर ने लोन पे ली थी। ठीक है, नेक्स्ट केसेस, अगर 5 लाख के एसेट्स हैं एंड बैंक लोन इज ऑफ से ₹6 लाख, तो सन कितना रीपे करेगा? इसका आंसर क्या है बताओ? लोन कितना लिया है? 6 लाख का। ठीक है, तो नाउ हाउ मच विल ही पे? करेक्ट, द आंसर इज हाउ मच ही विल पे अप टू 5 लाख रुपीज। मतलब क्या? he has to repay the liabilities up to the value of assets which he has inherited. I hope this is clear. How much liabilities he has to repay? He has to repay the liabilities up to the value of assets, up to, ठीक है, up to the value of assets which he has inherited. ये आपका लिखा है सेकेंड लास्ट स्लाइड में, देखो, I'll read it out. The liability of the son will be limited to the extent of the property which is inherited by him. तो यहाँ पर सेकेंड केस में प्रॉपर्टी कितनी इनहेरिट की थी उसने? 5 लाख की, और लोन कितना था? 6 लाख का। तो वो मैक्सिमम कितना पे करेगा? जितनी की उसको प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है। तो ही विल पे द लोन ऑफ ओनली ₹5 लाख। ठीक है, तो क्या लिखा है? द लाइबिलिटी ऑफ द सन विल बी लिमिटेड up to the extent of property which is inherited by him. This first para talks about the word succession. ठीक है, चाहिए तो वो आप 2 केसेस लिख लो, write down in your notebook, give the heading succession. Write down these 2 cases. फर्स्ट केस तो इजी है। सेकंड केस में हमने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया? दैट son's liability is limited up to the value of assets inherited. ये भी लाइन लिख लो आप अपने वर्ड्स में। even though if it is given, still write it down, because जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा समझ आएगा। son's liability is limited को अंडरलाइन हाईलाइट करो। it is limited up to the value of assets inherited. This entire concept is called as succession. ठीक है, now let us quickly see what is the meaning of assignment. ठीक है, मैं यहाँ पर असाइनमेंट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, पहले ध्यान दो फिर आप लिखना। नाउ असाइनमेंट में, अच्छा
पहले जब मैं सक्सेशन की बात करती हूँ, सक्सेशन कहाँ कैसे होता है, फादर्स प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स एंड जो भी लाइबिलिटीज हैं गेट्स ट्रांसफर टू हिज सन, करेक्ट? सो डोंट यू थिंक सक्सेशन में देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ ब्लड रिलेशन, करेक्ट? बट when we talk of assignment, ओके, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ असाइनमेंट, तो असाइनमेंट कोई भी कर सकता है, okay? So in short, in assignment you do not need any kind of a relation with the person, okay? Especially not a blood relation, not necessary. Succession में it has to be a blood relation if you see it that way. Assignment कोई भी कर सकता है, ठीक है? अब मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, A and B, ठीक है? पहले ध्यान देना, B is supposed to pay A rupees 5,000, ठीक है? B is supposed to pay to A rupees 5,000, ठीक है? Now A tells Q कि मुझे ना B से 5,000 आने वाले हैं और मेरे बदले, मैं तो सपोजिटली आउट ऑफ टाउन जा रही हूँ, सो मेरे बदले ना यू कलेक्ट फ्रॉम B रुपीज 5,000, ठीक है? अब कौन कलेक्ट करेगा? Q विल कलेक्ट, ठीक है? फ्रॉम हु? फ्रॉम मिस्टर B. तो A आई राइट हियर, शी इज गोइंग आउट ऑफ टाउन, ठीक है? तो उसने क्या किया, उसने Q को असाइन किया कि मेरे बदले तुम B से 5,000 कलेक्ट करना. दिस इज इन शॉर्ट exactly the word assignment. It means that. Now one thing which we have to understand that what is the difference between the word succession and assignment. एक तो आपको difference already पता चल गया होगा कि in succession you need a blood relation kind of, correct? In assignment कोई भी कर सकता है, friends, relatives, strangers, business parties, so on and so forth, ठीक है? तो यहाँ पर this is the first difference, ठीक है? Second difference क्या है कि आप सिर्फ अपने एसेट्स को असाइन कर सकते हो, ना कि अपनी लाइबिलिटीज को. यू कैनॉट असाइन योर लाइबिलिटीज. सपोजिटली मैं आपको कहती हूँ दैट आई एम गोइंग टू परचेज अ वॉशिंग मशीन विच इज वर्थ रुपीज 30,000, तो मेरे बदले ना तुम पे कर लो विजय सेल्स को 30,000. विल यू अग्री? अब वो बात की बात है कि मैं आपको वापस से दूंगी, बट सपोजिटली ऐसा कोई क्लॉज ही नहीं है दैट आई एम सपोज टू दैट आई विल रीपे यू. मैं आपको सिंपली बोल रही हूँ मेरे बदले 30,000 तुम पे करो. क्या तुम पे करोगे? द आंसर इज नो, राइट? तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, दैट यू कैन नॉट असाइन योर लाइबिलिटीज, है ना? तुम मेरे बदले किसी को पे नहीं करोगे. पर हाँ, अगर मैं तुमको बोलती हूँ कि मेरे बदले किसी से पैसे लेके आना, तो वो तुम करोगे क्या? द आंसर इज यस. So in short, what do we understand? That you can assign your assets. जैसे यहाँ पर A ने Q को बोला कि मेरे बदले तुम कलेक्ट करना, तो Q खुशी खुशी कलेक्ट करेगा. हो सकता है A को भी Q को कुछ पैसे देने हो, है ना? So whatever it is. So in short, from this example, what are we understanding? That A can assign that, you know, on my behalf, you collect 5,000 rupees from B. So यहाँ पर A ने क्या किया? A assigned Q to receive cash, and cash is in the form of assets, correct? So you can successfully assign your assets, but you cannot assign your liabilities. Whereas in case of succession, son के पास burden भी आता है, benefits भी आते हैं. So again, this is a second difference, correct? ये चाहिए तो short में लिख लो before we read assignment. That you can assign your assets, but you cannot assign your liabilities. Yeah, it can be voluntarily. इसमें वॉलंटरी और मैंडेटरी का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है ना. सी मैंने आपको क्या बोला,
ऐसा भी हो सकता है ना कि ए को क्यू को 5,000 रुपीज देने हैं, तो ये क्या बोलता है, सी rather than I paying you, someone already has to give me 5,000, so you better collect it from him only, है ना। बी तो रेडी है पे करने के, देखो बी को तो पैसे देने हैं, फिर वो ए को दे, क्यू को दे, डी को दे, एफ को दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो बी हैज टू पे, तो बी के पॉकेट से कैश आउटफ्लो होने वाला है। अब वो ए को दे डायरेक्टली या क्यू को दे, ही हैज नथिंग टू डू विद दैट। सो यहाँ पर ए खुद से ओके बोलता है क्यू को दैट ऐसा भी हो सकता है दैट फॉर द टाइम बीइंग यू कलेक्ट, और मैं जब वापस आ जाऊंगा व्हेन आई विल बी बैक यू गिव इट टू मी। या हो सकता है ऐसा भी, मैंने आपको दोनों केसेस बताए, दैट हो सकता है ए को भी क्यू को कुछ पेमेंट करना हो, है ना। सो व्हाट ही टेल्स दैट रादर देन मी पेइंग यू, कलेक्ट इट फ्रॉम बी ओनली, मैं बी से कलेक्ट करूं फिर मैं तुमको दूं, सो रादर देन डूइंग दिस सिंपली कलेक्टेड फ्रॉम मिस्टर बी। तो यहाँ पर ए ने किया क्या, ए सिंपली असाइंड द बेनिफिट्स दैट इज द एसेट्स। सो इन शॉर्ट व्हाट आर वी सीइंग दैट यू कैन नॉट असाइन द लायबिलिटीज टू समवन बट यू कैन असाइन द एसेट्स इफ नीड बी। ठीक है, डन राइटिंग, लेट अस रीड द कंटेंट। देखो क्या लिखा है। अब यहाँ पर असाइनमेंट में आपको सिर्फ सिंपली 2 लाइन्स ही पढ़ने हैं, जो मैं जितना मैं आपको मार्क करके देती हूँ। ठीक है, इन द मैटर ऑफ असाइनमेंट द बेनिफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी असाइंड, राइट। मैंने आपको यही बोला कि आप असाइन क्या कर सकते हो, सिर्फ बेनिफिट असाइन कर सकते हो, ना बर्डन या लाइबिलिटीज को असाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, ओनली, ओनली द बेनिफिट्स कैन बी असाइंड बट नॉट द लाइबिलिटीज देयर अंडर। ठीक है, आई होप द फर्स्ट सेंटेंस इज प्रीटी क्लियर। This is because when liability is assigned, a third party gets involved therein, है ना, कि आप फिर थर्ड पार्टी को क्यों पे करोगे। जैसे मैंने आपको विजय सेल का एग्जांपल दिया, will you pay on my behalf to rupees 35,000 to विजय सेल्स, नो, बिकॉज यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, thus a debtor cannot relieve himself of his liability to the creditor by assigning it to someone else। यहाँ पर विजय सेल्स को एक्चुअली में पे किसे करना है, आई हैव टू पे ना, तो इफ आई असाइन यू तो मैं अपनी लाइबिलिटीज से भाग नहीं सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखा है, if someone assigns the liabilities, so a debtor cannot relieve himself of his liabilities by assigning it to someone else, as it is his obligation to repay the debt, right। तो सी वॉशिंग मशीन मैं खरीद रही हूँ तो टेक्निकली और किसको पे करना चाहिए, आई ओनली हैव टू पे ना। सो बाय इफ इन केस इफ आई असाइन यू, तो यहाँ पर आई एम रिलीविंग माई सेल्फ विच आई कैन नॉट डू, इसलिए क्या बोल रहे हैं, यू कैन नॉट रिलीव yourself by assigning the liability to someone else, है ना, because it is your obligation to repay the debt। ठीक है, that is it। बस यहाँ तक फुल स्टॉप करके यहाँ तक कर लो। ये बाकी के 2 लाइन्स अगेन रिपीटेटिव हैं which makes no sense, so यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, नाउ इन योर मॉड्यूल एक सक्सेशन और एक असाइनमेंट का डिफरेंस भी दिया हुआ है। So rather than reading from there simply, I want you all to write it down। मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ। So अभी नोटबुक में हेडिंग दो, difference between succession and assignment, there are simply 3 points of 1 line each। ठीक है, तो कंटेंट आपको ये पूरा फर्स्ट वाला पैराग्राफ करना है और सेकेंड पैराग्राफ से टिल हियर। ठीक है, टिल हियर। चलो, should I start dictating? Okay, write down the first point। Okay, अब सक्सेशन में फर्स्ट पॉइंट लिखो, takes place by operation of law। Write down the first point in succession, takes place by operation of law। takes place by operation of law। असाइनमेंट में लिखो, takes place by act of parties। takes place by act of parties। takes place by act of parties। ठीक है, सक्सेशन में क्या लिखा है, takes place by operation of law,
और असाइनमेंट में क्या लिखा है, टेक्स प्लेस बाय एक्ट ऑफ पार्टीज. दिस इज पॉइंट नंबर 1. ओके, पॉइंट नंबर 2 लिखो सक्सेशन में, both rights and obligations can be succeeded. 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 असाइनमेंट में लिखो, only involves transfer of rights. Only involves transfer of rights. Only involves transfer of rights. ठीक है, तो सक्सेशन का सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, both rights and obligations can be succeeded. और यहाँ पर असाइनमेंट में क्या लिखा है, only involves transfer of rights. ठीक है, थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखो सक्सेशन में, सक्सेशन का थर्ड पॉइंट राइट डाउन, parties are only legal heirs. Parties are only legal heirs and natural person. Parties are only legal heirs and natural person. ये सक्सेशन का थर्ड पॉइंट है, parties are only legal heirs and natural person. अब असाइनमेंट का थर्ड पॉइंट लिखो, transfer takes place between natural or artificial person. Transfer takes place between natural or artificial person. What is artificial person? 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने ओसी में. What is an artificial person? रोबोट क्या? Who is an artificial person? Company, partnership firm, LLP, जॉइंट स्टॉक कंपनी, पढ़ा होगा ना आपने ये. सो क्या लिखा है असाइनमेंट का थर्ड पॉइंट, ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन. ठीक है, सो इन असाइनमेंट आर्टिफिशियल पर्सन्स आर आल्सो अलाउड, बट वेयरएज इन केस ऑफ सक्सेशन ओनली लीगल हेयर्स. ठीक है, हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, सक्सेशन एंड असाइनमेंट? ठीक है, चलो कम टू सेक्शन नंबर 42 इन योर नोट्स. पेज नंबर देखो कौन सा है, टॉपिक 4.6 लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी. ये मैंने आपको कल बताया था कि इसमें हमको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने हैं, करेक्ट? सो फर्स्ट वील जस्ट रीड आउट द कंटेंट एंड देन वील सॉल्व द सम्स. ओके, चलो आई विल रीड इट आउट. अच्छा, कल आपको याद है क्या कि हमने लास्ट में पढ़ा था दैट्स ऐसा होता है कि कभी कभी ए, बी एंड सी, these all three people are jointly and severally liable to pay Mr. D ₹6 lakhs, है ना? तो अब इन तीनों को मिलकर इसको पे करना है 6 lakhs rupees, right? So all these three people are jointly and severally liable to pay this third party, that is Mr. D. ठीक है, तो हम यही पढ़ने वाले हैं कि ये कैसे पे करेंगे, इनका रेशियो कैसे होगा, so on and so forth. ठीक है, so first we'll go through the theory part. Okay,
when two or more persons have made a joint promise, जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया A, B and C, है ना, तो यहाँ पर when two or more persons have made a joint promise during their joint lives, and after their death, his representatives jointly with the survivors, and after the death of the last survivor, representatives of all must fulfill the promise. मतलब क्या? Again I'll give you all two examples. सेम एग्जाम्पल में ले रही हूँ, ए बी एंड सी, इन तीनों को मिलकर डी को पैसे देने हैं, ठीक है। सपोजिटली इसके दौरान ए डाइज, तो अब पैसे कौन रीपे करेगा डी को? सो आई विल राइट हियर व्हाट इज द आंसर, एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लस बी प्लस सी, करेक्ट, ये आंसर है। अगर ए मर जाता है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स उसकी पोजीशन ले लेंगे, उसके साथ साथ बी और सी तो जिंदा ही हैं, तो प्लस बी एंड सी, करेक्ट। लास्ट लाइन में क्या लिखा है, आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर, मतलब क्या, ये मैंने आपको अगेन एग्जांपल दिया था, अगर ए बी और सी तीनों मर जाते हैं तो अब पैसे कौन देगा डी को? इन तीनों के रिस्पेक्टिव लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, करेक्ट। तो ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लस बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लस सी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, दे आर नाउ जॉइंटली लायबल टू पे मिस्टर डी, ठीक है। ये हमने कल ऑलरेडी देख लिए थे। तो ये दोनों सिचुएशंस हैं जहां पर तीनों मर जाते हैं तो तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जहां पर कोई एक मर जाता है तो उस बी और सी से कौन जुड़ जाएगा फिर? जो मर गया है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, ओके। If you want, you can write both these points if you want, but खैर जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ओके। सो दिस इज सेक्शन 42। अब इसमें देखो एनालिसिस में एक एग्जांपल दिया है, I'll read out. X, Y and Z jointly borrowed money during their lifetime to repay the debt. Upon the death of X, his representative say S, है ना, तो मैं लिख लेती हूँ X, Y and Z, उसके बाद X की डेथ हो गई तो इसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसका नाम S है, ठीक है। S along with Y and Z, तो अब रीपे कौन करेगा? S, Y plus Z, है ना, S along with Y and Z should jointly repay the debt and so on. This rule is applicable if contract reveals no contrary intention. अगर आपको याद रहेगा कल मैंने आपको इसका मतलब बताया था, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्ट्ररी इंटेंशन। कभी कभी अग्रीमेंट में लिखा होता है कि हम अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे हमारी डेथ होने के बाद भी, ठीक है। यूजुअली ऐसा नहीं होता है बट इन्होंने एक क्लॉज एड अप कर लिया है, ठीक है। तो अब कौन लायबल होगा? एस अलॉन्ग विथ वाई एंड जेड, ठीक है। तो एक्स का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसका नाम एस है, ओके। तो ये एग्जांपल में आपको दिया था, ओके। नाउ दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैं जितना जितना पढ़ रही हूँ आपको सिर्फ उतना उतना मार्क करना है नोट्स में, ठीक है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद सेक्शन 43। अब तक हमने जो देखा है दैट इज सेक्शन 42, ओके। ये 42 में हमने सारे जनरल चीजें पढ़ी जो हमने कल भी थोड़ा डिस्कस किया था। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद सेक्शन 43 जिसका हेडिंग क्या है? एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स में कंपेल्ड टू परफॉर्म, ओके। नाउ इसका पहले मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। अब यूजुअली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? ए बी और सी, ठीक है। अब तीनों जिंदा हैं, तीनों को डी को पैसे देने हैं, ठीक है। अब क्या हुआ है ना, बी और सी दोनों मिलके ए को क्या बोलते हैं कि फुल इसको कितने पैसे देने हैं? 6 लाख रुपीज, ठीक है। सो ऑल थ्री टुगेदर दे हैव टू पे मिस्टर डी हाउ मच? 6 लाख रुपीज। तो बी और सी मिलके ए को क्या बोलते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग ना तू पूरा पेमेंट कर दे डी को, 6 लाख पूरा दे दे तू, ठीक है, हम तुझे बाद में रीपे करते हैं, ओके। तो अब आप बताओ, यहाँ पर आपको कोई रेशियो नहीं दिया है। जब आपको क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं दिया है तो आपको अज्यूम करना है दैट रेशियो इज 1:1:1, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि अब पूरा 6 लाख रुपीज ए ने डी को पे कर दिया है। सो नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज हाउ मच कैन ए recover from B and C? क्वेश्चन मार्क। बताओ क्या आंसर है? ए कितना रिकवर करेगा बी से और ए कितना रिकवर करेगा सी से? करेक्ट।
So what is the answer? 2 lakh per person. Correct? Am I right? तो 6 lakhs में से ये 1:1 का 1 का रेशियो है. करेक्ट? तो ए को कितना पे करना है? 2 लाख. बी को कितना पे करना है? 2 लाख. सी को कितना पे करना है? 2 लाख. बट फॉर द टाइमिंग पूरा किसने पे किया है? डी को. ए ने पे किया है डी को. करेक्ट? तो अब 6 लाख में से ए बी से कितना मांगेगा? 2 लाख रुपीज. करेक्ट? और सी से कितना मांगेगा? 2 लाख रुपीज. राइट? सबको ये आंसर समझा है क्या? किसमें इसको डाउट है? सो दैट इज 4 लाख रुपीज इन, अगर कंबाइन करके मैं बोलूं तो. बट आपको आंसर में क्या लिखना है? ए कैन रिकवर फ्रॉम बी एंड सी 2 लाख रुपीज पर पर्सन. ठीक है? तो पूरा 4 लाख का आंसर मत लिखना. सो हाउ मच, व्हाट इज द आंसर? इट इज 2 लाख रुपीज पर पर्सन. राइट? So this we are going to study in section 43. अब ध्यान देना क्या लिखा है यहाँ पर. जब मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ ना, so theory becomes a little easy. When 2 or more person make a joint promise, the promisee may, in absence of express agreement, compel anyone joint promisers to perform the whole promise. यहाँ पर पूरा promise किसने perform किया है? A has performed the whole promise. Correct? क्योंकि यहाँ पर बी और सी ने क्या मिलके बोला? ए को कन्विंस किया, ए को रिक्वेस्ट किया कि पूरा का पूरा पेमेंट डी को तू कर ले, उसके बाद वी विल पे यू. करेक्ट? सो यहाँ पर होल प्रॉमिस हु हैज परफॉर्म, होल प्रॉमिस हैज बीन परफॉर्म्ड बाय मिस्टर ए. ठीक है? उसके बाद ऑफ कोर्स बी और सी उसको रीपे कर देंगे. ठीक है? यहाँ पर एक एग्जांपल था. Okay, now this is an important example, example number 2. ठीक है? ये पढ़ो, आप खुद से पढ़ो. Read this example, then I'll discuss. Have you all understood this example? किसी को कोई डाउट है इसमें? So यहाँ पर हुआ क्या है? A, B and C. ठीक है? उसके they have to pay how much? 3 लाख रुपीज. करेक्ट? यहाँ पर रेशियो कुछ दिया है क्या? नहीं. तो वी विल अज्यूम 1:1 का 1 का रेशियो है. ठीक है? यहाँ पर क्या लिखा है? सी इज अनेबल टू पे एनीथिंग. है ना? वो मर नहीं गया है कि हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को लाएंगे बीच में. ही इज अलाइव बट ही इज नॉट एबल टू पे एनीथिंग. करेक्ट? तो अब ये प्रॉमिस को फुलफिल कौन करेगा? ए एंड बी फुलफिल करेंगे. करेक्ट? उसके बाद क्या लिखा है? ए ने पूरा पैसा दे दिया. सो ए डिस्चार्ज्ड होल अमाउंट टू मिस्टर डी. करेक्ट? ए ने अपने जेब से निकाल के 3 लाख रुपीज डी को दे दिए. तो क्वेश्चन ये है दैट हाउ मच विल ए रिकवर फ्रॉम बी. तो अब ये 3 lakhs को हम डिवाइडेड बाय 3 कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं. करेक्ट? क्योंकि यहाँ पर सी ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, तो इसको 3 से डिवाइड ना करके 2 से डिवाइड करेंगे. राइट? बिकॉज अब ए और बी विल इक्वली पे. सो हाउ मच इज ए एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम बी? 1,50,000. Is this example clear to everyone? I'm asking you all. Yes. So ये वाले एग्जाम्पल को स्टार मार्क कर लो. Now after reading this example, come to this example. A in consideration of 5 lakh rupees lent to him by B and C. ये थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ. यूजुअली हमने क्या देखा है? ए, बी और सी ये मिलके पैसे लेते हैं डी से, और इनको मिलके डी को रीपे करना होता है. करेक्ट? सो यहाँ पर जिसको हम रीपे कर रहे हैं, the person to whom repayment is to be made, यहाँ पर सिर्फ 1 person होता है, 1 पार्टी होती है यूजुअली. ठीक है? ये एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है. So again I'll make the structure.
सो वी विल रीड, क्या लिखा है, ए इन कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख रुपीज लेंट टू हिम बाय बी एंड सी, मतलब यहाँ पर बी और सी ने ए को पैसे दिए हैं, तो अब ए इनको दोनों को रीपे करेगा, राइट। सो यहाँ पर मैं लिखती हूँ who has to repay, A has to repay, A is the only one party, correct, so A has to repay to B and C, कितना, I'll write here 5 lakh rupees, है ना, A को पैसे देने हैं B और C को, how much, 5 lakh rupees, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, B dies, ठीक है, इन सच केस, यहाँ पर B मर जाता है, B और C को पैसे आने हैं, ठीक है, यहाँ पर B dies, in such case the right to demand payment shall rest with B's legal representatives jointly with C, है ना। तो यहाँ पर A जिंदा है तो A 5 लाख रीपे करेगा, किसको रीपे करेगा, पहले अगर B जिंदा होता तो A would have repaid to B and C, बट बाद में फैक्ट्स ऑफ द केस में क्या दिए हैं, B मर जाता है, तो अब A किसको किसको रीपे करेगा, A will repay to B's legal representative and C, ठीक है। तो क्या लिखा है, he shall repay with B's legal representatives jointly with C, this is the answer, है ना। उसके बाद क्या लिखा है, बट इन केस अगर C भी मर जाता है after the death of C with his legal representatives of B and C joint, मतलब क्या अगर दोनों मर जाते हैं तो अब A किसको रीपे करेगा, A ऐसा सोचेगा क्या कि ठीक है अब दोनों मर गए तो छोड़ो, नहीं, he has to repay, now whom he will repay, to B and C's legal representatives, ठीक है, क्योंकि इस केस में सेकेंड लाइन में यहाँ पर दोनों मर जाते हैं, तो अब दोनों मर जाते हैं तो ए चुप बैठेगा क्या कि छोड़ो जाने दो, why should I repay, no, he has to repay, but now whom will he repay to both of their legal representatives, करेक्ट। ये एग्जाम्पल समझा है सबको, ये एग्जाम्पल वापस से पढ़ लो, रीड दिस एग्जाम्पल। Done? Okay, now I'm giving you a practical question. Up, you tell me and then we'll solve the question which is given behind. Okay, अब मैं आपको अपना एग्जाम्पल क्रिएट करके बता रही हूँ, आप मुझे बस आंसर बताना चैट बॉक्स में, ठीक है। All of them are jointly liable to pay Mr. D rupees 3 lakh, ठीक है, these are the facts of the case. उसके बाद मैंने लिखा है B becomes insolvent, hence he is only capable to pay 1/5 of his share. यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, his share, this is important, ठीक है, फुल स्टॉप। नाउ क्वेश्चन ये है, A का टेल मी A's शेयर, B's शेयर एंड C's शेयर, कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे वो, ये मुझे बताओ। दिस इज द क्वेश्चन, B becomes insolvent, he is capable to pay only 1/5 of his share, 1/5 आपको पूरा 3 lakhs का करना है क्या, यहाँ पर आपको रेशियो नहीं दिया है तो अज्यूम करो 1:1:1, है ना। 1/5 पूरा 3 लाख का करना है क्या, वो ध्यान से देखना, 3 लाख का करना है या किसी और का करना है। चलो आई वांट एवरीबडी टू आंसर दिस क्वेश्चन, डोंट राइट A, B and C, अपना आंसर ही ऐसा लिखो, फॉर उसमें लिखो, ऑर्डर में लिखो, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड। यस, हाउ आर यू कैलकुलेटिंग, सबके आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं मेरे को तो। तो ये सबको क्लियर है कि बी का शेयर कितना होगा, बी शेयर विल बी 20,000, करेक्ट। तो जब भी ऐसा केस आता है आपको पहले उसका शेयर कैलकुलेट करना है जो इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है। सो इसका 20,000 आ गया, राइट, कैसे कैलकुलेट किया, इसका जो शेयर था हिज शेयर, इसका शेयर कितना है 1 लाख रुपीज,
उसका आपने किया 1/5, तो आंसर आता है 20,000। अब पूरा लाइबिलिटी कितना बचेगा, ये 20,000 देगा, तो अब पूरी लाइबिलिटी कितनी बचती है, 2,80,000। करेक्ट, 2,80,000 को डिवाइडेड बाय 2 करो, वही होगा ए का शेयर और सी का शेयर, विच इज हाउ मच, 1,40,000 ईच। करेक्ट। सो इन शॉर्ट आपको करना क्या है, ये जब आपको तीनों के शेयर आ जाते हैं, दिस शुड टैली विद द फिगर ऑफ द लाइबिलिटी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो 1,40,000 इज ए शेयर, 1,40,000 इज सी शेयर, एंड व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, दैट इज 20,000। ठीक है, इतना ही इजी है ये, इसमें किसी को डाउट है क्या? चाहिए तो लिख लो, ये राइट डाउन दिस सम इन योर नोटबुक, आई विल वेट। Come to question number 32. Come to question number 32. Read that question. वहां पर आपको थोड़ा सा सॉल्व करके भी दिया है। अच्छा, एक ना वहां पर मिस्टेक हो गई है, तो इट इज रिटन एक्स वाई एंड जेड, करेक्ट। सो वाई के नीचे वो कुछ उन्होंने ये किया है, सॉल्व किया है, वहां पर 26,000 है, करेक्ट। 26 को नहीं, दैट इज नॉट 26, दैट इज 20,000। तो 6 को कन्वर्ट करो 0 में, तो जो y का शेयर है उन्होंने आपको कैलकुलेट करके दिया है, दैट इज 20,000। ठीक है, सो नाउ रीड द आंसर, रीड द क्वेश्चन, सॉरी, एंड टेल मी व्हाट इज x का आंसर एंड z का आंसर। X, Y, and Z are partners in the firm. They jointly promised to pay rupees 3 lakh to D. Y became insolvent and his private assets are sufficient to pay 1/5. I guess वहां पर 1/5 प्रिंट नहीं हुआ है, तो Y का शेयर कितना है, 1/5, वहां पर लिख लो। Y became insolvent and his private assets are sufficient to pay 1/5. We are discussing question 32. ठीक है, so Y become insolvent and his private assets are sufficient to pay 1/5 of his share of debts. अब हुआ क्या, X is compelled to pay whole amount, करेक्ट, whole amount to D। पूरा अमाउंट कितना है, तो X ने पे किया है D को, कितना, फुल 3 लाख रुपीज। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, examining the provisions of the ICA decide the extent to which X can recover the amount from Y and Z। बताओ X कितना रिकवर करेगा Y से और X कितना रिकवर करेगा Z से, टेल मी क्विकली। पूरा अमाउंट कितना है, 3 लाख रुपीज, करेक्ट। सो फुल अमाउंट इज हाउ मच, 3 लाख रुपीज। उसमें से आपको Y का इन्होंने कैलकुलेट करके दिया है, दैट इज 20,000 रुपीज। तो 20,000 किससे आया, 1 लाख का 1/5, करेक्ट। करेक्ट, तो ये X Y से कितना रिकवर करेगा, सॉरी, he will recover 1,40,000 फ्रॉम हिम, सॉरी, Y से तो 20,000 करेगा और Z से कितना रिकवर करेगा, 1,40,000, करेक्ट। ये कैलकुलेशन समझा है क्या सबको? तो जहां पर वो आपको डायग्राम ऑलरेडी बना के दिया है, वहां पर लिखो X 1,40,000, Z 1,40,000, करेक्ट, और Y का तो 20,000 लिखा ही हुआ है, वहां पर 26 गलती से मिस्टेक से प्रिंट हुआ है, ठीक है, उसको 6 को 0 कर दो, दैट इज 20,000। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलो, नाउ राइट डाउन द आंसर, आई डिक्टेट, आई स्टार्ट डिक्टेटिंग। ये कैलकुलेशन पार्ट हो गया है सबका? चलो, राइट ऑन पॉइंट नंबर 1। लिखो, एज पर सेक्शन 43 of the Indian Contract Act, 1872,
क्या लिखा है? एज पर सेक्शन 43 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसके बाद ये पूरा लाइन लिख लो. राइट डाउन दीज टू लाइन्स. When two or more persons make a joint promise, the promisee may compel any one or more joint promisers to perform the whole of the promise. Write down these two lines. I'll wait. पहले पर लिख लो. Just do not give the reference. I'm ready to wait for 2-3 minutes. लिख लो ये. As per section 43 of the Indian Contract Act 1872, and then write down these. So this is point number 1, okay, of this answer. So now if you see, even though if it's a practical question, we have written 1 point, at least 1 point as an introductory point in theory form, है ना? तो directly आपको answer पर skip नहीं करना है. Now even when we write the second point explaining the calculation, पूरा calculation लिखना है, ठीक है? Do not assume that the examiner already knows, ठीक है? आपको as it is पूरा लिखना है. So point 1 क्या था? As per section 43 of the Indian Contract Act 1872, and then you have written down those two lines, ठीक है? Next point लिखो. Point number 2. In the above case, comma, in the above case, comma, X, comma, Y and Z are partners in a firm. In the above case, comma, X, comma, Y and Z are partners in a firm. Full stop. They jointly promised to pay rupees 3 lakh to D. They jointly promised to pay rupees 3 lakhs to D. Full stop. They jointly promised to pay rupees 3 lakhs to Mr. D. Full stop. Y became insolvent. Y became insolvent. Y became insolvent, and his property was sufficient, and his property was sufficient to pay only, and his property was sufficient to pay only 1/5 of his share. His property was sufficient to pay only 1/5 of his share in total debt. 1/5 of his share in total debt. I'll repeat these 3 sentences again. Okay, point 2. In the above case, comma, X, comma, Y and Z are partners in a firm. Full stop. They jointly promised to pay rupees 3 lakhs to D. Full stop. Y had become insolvent. Y became insolvent, and his property was sufficient to pay only 1/5 of his share in total debt. Full stop. आगे लिखो. X paid the entire amount to D. X paid the entire amount to D. Full stop. X paid the entire amount to D. Full stop. आगे लिखो. Since X paid the entire amount, he has a right to recover. He has a right to recover. He has a right to recover from Y and Z their respective shares. He has a right to recover
from Y and Z their respective shares. ठीक है, since X had paid the entire amount, he has a right to recover from Y and Z their respective shares. This entire is point number 2. Now start writing point number 3. Point number 3 लिखो. As Y was insolvent, as Y was insolvent, he contributed only 1/5 of his share. He contributed only 1/5 of his share. ब्रैकेट में लिखो, write down 1/5 of rupees 1 lakh. Write down this in bracket. Point 3, I'll repeat again. As Y had become insolvent, he contributed only 1/5 of his share. फिर ब्रैकेट में write down this जो मैंने लिखा है. That is rupees 20,000. That is rupees 20,000. ब्रैकेट में लिखने के बाद क्लोज डाउन द ब्रैकेट. उसके बाद लिखो that is rupees 20,000. उसके बाद लिखो X can recover 20,000 from Y. X can recover rupees 20,000 from Y. This is point number 3. I'll repeat point number 3 again. As Y had become insolvent, he contributed only 1/5 of his share. फिर ब्रैकेट में आपने ये लिखा है 1/5 of rupees 1 lakh, that is rupees 20,000. Then क्या लिखा है आपने? X can recover rupees 20,000 from Y. This is point number 3. ठीक है, X can recover rupees 20,000 from Y. This is point number 3. Now write down point number 4. It's just 2 lines. That's it. Point number 4 लिखो. Therefore, in the above case, X can recover. Therefore, in the above case, X can recover rupees 20,000 from Y, and X can recover rupees 20,000 from Y and rupees 1,40,000 from Z, and rupees 1,40,000 from Z. अब 1,40,000 कैसे आया वो भी लिखो ब्रैकेट में. 2,80,000 divided by 2. So fourth point क्या है? Therefore, in the above case, X can recover rupees 20,000 from Y and rupees 1,40,000. वो कैसे आया? 2,80,000 divided by 2 from Z. ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? सबने लिखे हैं ऑल 4 पॉइंट्स? Everybody done? Okay, now I'm not starting with a new topic, but ना एक मैं आपको सिर्फ एक टास्क दे रही हूँ, वो आप कर लेना सिर्फ. ठीक है, अब सुनो करना क्या है. Come to the last topic of this unit. That is 4.11, discharge of contract. ठीक है, अब इसमें डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ना है हमें कि एक कॉन्ट्रैक्ट कौन से वेज एंड मेथड से डिस्चार्ज हो सकता है या कि मतलब खत्म हो सकता है. तो देखो देयर आर वेज. फर्स्ट क्या है? डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. सिंपल है,
कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, करेक्ट। मतलब मैंने अपने तरफ के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किए, आपने अपने तरफ के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किए, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, राइट। यू वर सपोज टू गिव मी गुड्स, आई वाज सपोज टू मेक यू द पेमेंट, ठीक है। आपने मुझे गुड्स दिए, मैंने आपको पेमेंट दिया, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज हुआ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। किसी ने भी ब्रीच नहीं किया था, ओके। नेक्स्ट क्या है, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर लेते हैं। इसमें भी थोड़े कुछ वेज हैं। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब क्या, डू यू रिमेंबर दिस? देखो मैं एक एग्जांपल पढ़ रही हूं। ए अग्रीज विद बी टू डिस्कवर अ ट्रेजर बाय मैजिक, ये हो सकता है क्या? सो दिस इज वॉइड ड्यू टू इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, ये स्टार्ट ही नहीं हो सकता है, राइट। सेकेंड केस देखो, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर, बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर मैरिज ए गोज मैड, दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void। तो ये इवेंचुअली इम्पॉसिबिलिटी एक क्रिएट हो गई है ना। या एक ऐसा भी हमने एग्जांपल पढ़ा था इन यूनिट 1, दैट आई अग्री टू डू दिस थिंग फॉर यू सपोजिटली प्रोवाइडेड यू गेट स्टार्स फ्रॉम द स्काई। तो अगेन दिस इज इम्पॉसिबिलिटी। देन डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, है ना। देखो ये हमने पढ़ा है क्या, टाइम बार्ड डेट। इफ अ क्रेडिटर डज नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द बायर फॉर द रिकवरी ऑफ प्राइस विद इन 3 years, मैंने आपको बताया था 3 साल तक मिलते हैं, है ना। 3 years तक कोर्ट जा सकते हो। उसके बाद अगर कोर्ट जाओगे तो आपको कोर्ट क्या बोलेगा, दैट वर यू स्लीपिंग टिल 3 years। तो 3 साल के बाद अगर आप केस फाइल करते हो, सो विल दे एंटरटेन यू, द आंसर इज नो। तो यहाँ पर टाइम खत्म हो चुका है, द डेट हैज thus become time barred and hence irrecoverable, है ना। उसके बाद आप उसको फोर्स नहीं करोगे डेटर को कि नहीं नहीं मुझे पैसे दे, दिस दैट, यू कैन नॉट डू सो बिकॉज नाउ द डेट हैज बिकम इररिकवरेबल, और आपने 3 साल तक केस भी फाइल नहीं किया, तो कोई भी आपको रेमेडी नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, इंसॉल्वेंसी, डेथ, है ना, वट एवर इट इज। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैंने ब्रीच कर लिया, मैंने बीच में आपको बोल दिया, अच्छा क्या हमने ब्रीच पढ़ा है? ब्रीच के कौन से टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्चुअल ब्रीच, एक होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच, करेक्ट। तो कैसे भी करके मैंने ब्रीच कर लिया, है ना। मैंने बोला कि नहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करूंगी ही नहीं अब, है ना। तो यहाँ पर ब्रीच हो गया, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर लिया सम और द अदर वे, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बेसिकली। सो दीज आर फ्यू of the methods through which a contract can be discharged. Now today I just want I want from you all कि आप सिर्फ सब headings पढ़ो, ठीक है। Of course I'm going to take this tomorrow in detail, ठीक है। सिर्फ सब headings थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना, okay। I'll of course make you all like we'll study this tomorrow. This is an easy topic, इसलिए I'm giving it to you all, ठीक है। So for homework just read this discharge of contract वाला concept, okay। चलो, I'll see you all tomorrow.